Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. And in the Pavilion, I'm joined by four fantastic minds of the game of cricket, four former captains of Pakistan, four individuals who served the game of cricket in Pakistan really well. First up, I've got Azhar Ali. Hello, assalamu alaikum and welcome, Azhar. Very much. Next up, the Professor, Mohammad Hafiz. Hello, assalamu alaikum and welcome, Hafiz. With that, I've got Misbah Haq. Hello, assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam. And finally, ladies and gentlemen, the man himself, the Sultan of Swing and the Swinging Sultan, the great Wasim Akram. Hello, assalamu alaikum and welcome, Wasim. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. क्या हाल है सबके? All good and it's been good going. कल जरा जल्दी फारिग हो गए थे हम लोग सारे के सारे. सबकी नींद जो है वो पूरी हो गई. Not good for PSL, not good for especially Lahore. We discussed this subject in length last night. Correct. But weather you can't control. But yeah, it was a bit of a buzzkill. Double header था. बिल्कुल ऐसे ही था. कल क्या हुआ जरा इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं दोस्तों. कल दो मुकाबले होने थे. कल सुपर सैटरडे था और दो मैचेस होने थे. दोनों रावलपिंडी में होने थे. पहला मैच और दूसरा मैच दोनों के दोनों जो है वो वॉश आउट हो गए. इनका एक्चुअली हमारे पास मैच समरी नहीं है लेकिन हमारे पास पॉइंट टेबल जरूर मौजूद है जो कि रिवाइज हो चुके हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. सूरत हाल पॉइंट टेबल पे मुल्तान सुल्तान बट दस्तूर टॉप. 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते 1 हारे, 10 पॉइंट हो गए. आज अगर मुल्तान अपना मुकाबला जीत जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा. दे विल बी द फर्स्ट टीम टू हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स. क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनके बाद दूसरे नंबर पे उनके 9 पॉइंट्स हैं. कल उनको 1 पॉइंट मिला है. इस पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स मस्ट बी अ लिटिल अपसेट बिकॉज़ दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ 1 गेम एंड 1 पॉइंट. पेशावर ज़ल्मी सेम सिचुएशन, उनको भी 1 पॉइंट मिला है. वो 7 पॉइंट्स पे आ गए हैं. दे आर एट नंबर 3 राइट नाउ and they would also be feeling a little deprived because they had a game that could have been won. They would have believed so. Islamabad United sitting at number 4 with 5 points. उनको भी कल 1 पॉइंट मिला है. Karachi Kings now in a good position if they can somehow pull off a miracle of winning 5 straight games. They can actually also qualify. That's Karachi Kings at number 5 right now with 4 points. And Lahore Qalandars कल उनको भी 1 पॉइंट मिला है दोस्तों. 1 पॉइंट कल लाहौर कलंदर्स को भी मिला है. उन्होंने अब 7 मैचेस खेले हैं, 6 हारे हैं, 1 का कोई रिजल्ट नहीं था जो कि कल का मैच था जिसके नतीजे में उनको 1 पॉइंट मिला है. डिफेंडिंग चैंपियंस हैं. 2 लगातार साल ये PSL के चैंपियन रहे हैं और बदकिस्मती से इस वक्त सूरत हाल उनकी इस टेबल के ऊपर जो है वो ये है कि दे राइट एट द बॉटम बट दे फाइनली गॉट 1 पॉइंट एंड दैट्स हाउ योर पॉइंट्स टेबल इज लुकिंग लाइक राइट नाउ. Wasim, so far it has been a PSL which has surprised us. In some cases it has been total surprises. But the best part is कि हमें पीछे बहुत सारे मैचेस मिले जो कि बड़े क्लोज थे. You know, it's been great excitement, great finishes. बिल्कुल, क्रिकेट हैज़ बिन एक्सेलेंट. बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं. आखिरी बॉल पे ख़त्म हुआ है, आखिरी ओवर में फिनिश हुए हैं. सरप्राइज आई सपोज लाहौर का था. आई थॉट के 2 दफ़ा चैम्पियन हैं और बट द लॉस फर्स्ट 6 गेम इन अ रो. दैट्स अ बिग ड्रॉबैक फॉर एनी टीम इन एनी टीम स्पोर्ट, नॉट जस्ट इन क्रिकेट. अब वो अगले सीज़न का सोचेंगे. आई सपोज अब अगर 3 मैच और खेलने हैं उसमें कोई यंग लड़का ट्राई कर सकते हैं इफ दे वांट टू. But I doubt they will because sometimes you play now like these guys were saying the other day, including myself, that now they probably will play for their pride. Although there is no pride left, but there is individual pride होती है. Yeah, pride, true. I know what you're saying. I know. I'm not being funny. Pride means के idea of a tournament is कि 6 में से 4 में तो खत्म हो जाए. वो मुश्किल होता है. I've been through this from last 2-3 years. It is tough. It is tough for any team. Yeah. Hafiz, for Lahore Qalandars now only 3 games left. Of course, there is no scenario जिससे कि वो qualify करते हैं. They're pretty much done in this HBL PSL. And जिस तरह वसीम कह रहे थे कि maybe इस वक्त वो try कर सकते हैं नए लड़कों को इस तरह. What do you think would be their strategy going into these 3 games? नहीं, नए लड़कों को तो पहले ट्राई किया. एहसन भट्टी को हमने खेलते हुए देखा, जहांदाद को प्रमोशन हमने देखी. तो मुझे नहीं लगता है कि ये ट्राई करने का वक्त है. ये जो भी 3 मैच रह गए हैं उनके बाकी अगर ये तीनों मैच वो जीतते हैं तो फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ बेस्ड ऑन अ स्पॉन्सरशिप ऑल्सो. डेवलपमेंट ऑफ द गेम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है लेकिन इट्स ऑल अबाउट बिजनेस. तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना बड़ा चांस लेंगे जहाँ पे वो फंसें या बिल्कुल ही इस तरह आए कि वो 9 के 9 मैच हार गए हैं. मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग 3 मैचेस हैं उसमें एक बेहतर परफॉर्मेंसेस दें एज ए टीम और जो भी जीत उनके पास आ सकती है उसको ग्रैब करें क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 1 year, इट्स अबाउट बिल्डिंग अप टू द नेक्स्ट सीजन. तो अगर वो इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर देम एज वेल. जी कि राशिद बड़ा लाया था लास्ट मिनट पे वो इंजर भी हो गया, आया भी नहीं. मिड ओवर में प्रॉब्लम हुई. 3-4 मैचेस बड़े क्लोज ख़त्म हुए जो कि इनकी फेवर में भी जा सकते थे. जी ऐसे ही है. For you, Azhar, what has been the surprise of this tournament? What team has really
यू नो इवन इफ दे हैव नॉट मेड इट बट यू नो जिसने आपको सरप्राइज किया यार इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है या कुछ बड़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं इस HPL PSL के अंदर? देखिए मुझे टू बी ऑनेस्ट आई हैड टू एक्सेप्ट इट, जब मुल्तान सुल्तान टीम पहले बनी थी ना, आई फेल्ट के दे लुक लाइक ऑन पेपर वेरी वीक, but they turned out to be the most strongest team so far in this tournament with their performance. Right. I'm not saying अभी भी जब आप ऑन पेपर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बड़े बड़े नाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उनकी रिसर्च थी अराउंड लोकल प्लेयर्स, फिर उन्होंने जिस तरीके से उनको खिलाया, जिस तरीके से उनको गाइड करके उनके रोल्स दिए, आई थिंक दिस सरप्राइज मी द वे दे परफॉर्म दिस सीज़न. वो हर पिछले 2-3 सीज़न से तो करते आ रहे हैं, लेकिन आई फेल्ट कि जब उन्होंने टीम पिक की थी ऑन पेपर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी. तो आई थिंक दिस सरप्राइज मुझे तो किया उन्होंने, और जो भी उनकी पिक्स थी, जो भी उनका यू नो मेथड था पीछे यू नो डेविड विली को लेने का, फिर मोहम्मद अली को लेके जिस तरीके से उन्होंने खिलाया, ऑलमोस्ट ही इज़ लीडिंग द बॉलिंग चार्ट एट द मोमेंट, और जिस इकॉनमी रेट से वो बॉलिंग कर रहा है. फिर उसामा मीर देखा है पीछे वर्ल्ड कप में भी, और T20 टूर्नामेंट जो T20 सीरीज़ हुई है, नहीं बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, PSL में आते हैं और सडनली उनकी लाइन लेंथ और कंट्रोल बेहतर हो जाता है. आई थिंक दिस मुल्तान ने मुझे सरप्राइज़ किया है दिस सीज़न. आई थॉट कि दे विल स्ट्रगल टू क्वालिफाई, मे बी प्ले ऑफ्स और प्ले ऑफ क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन उस तरह जिस तरह ये फाइनल्स में जाते हैं उस तरह नहीं जाएं. अभी भी जारी बात है फाइनल में तो नहीं पहुंचे, लेकिन दे लुक लाइक दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स फॉर द फाइनल. Yep. And for you, Misbah, what has been the pick of the players maybe so far in this HBL PSL 9? आई थिंक पहले तो मैं टीम की बात करूंगा. मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ा मैंने चेंज देखा ज़ल्मी की टीम में, नॉर्मली बिल्कुल वो फास्ट बॉलिंग ड्रिवन टीम है, बिलीव नहीं है उनका स्पिन बॉलिंग पे. एक ऐसे स्पिनर को लेके आए आरिफ याकूब को, जिन्होंने सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस की और उन पे बैंक किया, और उसके उनको फ्रूट्स भी मिले. 3 मैच 2 हारने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, और नॉर्मली चेजिंग टीम है. Right. नाउ दे आर बैटिंग फर्स्ट एंड डिफेंडिंग. जो एक चेंज नज़र आई बाबर की कप्तानी में, वो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ नज़र आई. डिफेंडिंग टोटल्स और अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की. जहाँ तक बॉलर्स की बात है, आई थिंक कि ऑलरेडी हमारे जो बॉलर खेल रहे हैं, अबरार, द वे ही इज़ परफॉर्मिंग इन T20 क्रिकेट, दैट इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर पाकिस्तान. हम हमेशा से कहते आए हैं, वर्ल्ड कप में भी कह रहे थे कि वाइट बॉल में इनका रोल बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है, जो कि नहीं था अभी तक. फिर ख्वाजा नाफे हैं जो आए और जिन्होंने इम्पैक्ट डाला, बीइंग अ यंगस्टर. आते ही पहले 2 मैचों में द वे ही परफॉर्म्ड इन द कपल ऑफ इनिंग्स. मोहम्मद अली ऑब्वियसली वी आर ऑल लुकिंग द वे ही इज़ परफॉर्मिंग. रेड बॉल में अच्छे थे, वाइट बॉल में आके जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस की, तो ओवरऑल आई थिंक प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने इम्पैक्ट डाला. और जब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लाहौर कलंदर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो उन्होंने मिस किया. हालांकि सर्किट में ऐसे स्पिनर मौजूद थे, राशिद खान की कमी को उन्होंने लाइटली लिया. उन्होंने उसका कोई सोचा नहीं कि हमारे पास बैकअप क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, हमारे पास कौन वो लीडिंग स्पिनर होगा जिसको हम लें, जो उसका रोल कम से कम पूरा नहीं निभाए तो 60% 50% तो इम्पैक्ट डाले. एंड लुक वे दे आर एट द मोमेंट. और एक सलमान को उन्होंने लिया है जो बिल्कुल ही अननोन कमोडिटी थे, उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बीइंग अ लीडिंग स्पिनर. मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक वजह है आज लाहौर कलंदर्स की कि वो इस सिचुएशन में. तो आई थिंक फॉर द अदर टीम्स दिस इज़ अ मैसेज. ज़ल्मी ने ये लर्न किया पिछले सीज़न से, लाहौर ने मिस किया इसको, और फिर कोयटा की इमर्जेंस एज ए टीम. जिस सिचुएशन से उन्होंने जो ट्रेड्स की, जो सेंसिबल डिसीजंस से टेकिंग प्लेयर्स and the way they utilize them, and that's something which is new from the last 3 seasons. Right. एक चीज़ आपने शावर ज़ल्मी की आपने बार बार बात की कि दे वर वेरी वन डायमेंशनल टीम, वेरी फास्ट बॉलर ओरिएंटेड टीम, और अब उन्होंने काफ़ी वो किया है. और आपने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी को आप देखिए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से टोटल्स अपने डिफेंड किए हैं. डू यू थिंक कि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो निखरी है अंडर ए डिफरेंट इन्वायरमेंट, मे बी इन द ड्रेसिंग रूम, मे बी सैमी बीइंग प्रेजेंट देयर, मे बी द पीपल अराउंड हिम हैव enabled him to be a better captain rather than the environment he was finding in the dressing room of the Pakistan team?
यू कैन से आई मीन व्हाटएवर, उसका भी इम्पैक्ट आया होगा। तो उसको पूरी सपोर्ट थी बाय द बोर्ड फॉर लास्ट 3-4 इयर्स। पूरी नहीं, मेरा लड़कों की सपोर्ट की बात थी। नहीं होती, स्किप मेरा बात होती है कि समटाइम्स यू नो यू वांट पीपल टू बी एबल टू टेल यू कि यार आई थिंक No, I दिस इज think रॉन्ग। he's come to that age. He captained Pakistan for 3-4 years, and I think he has learned. आई थिंक डैरेन सेमी तो पिछले साल भी कप्तान थे, Yeah. पिछले साल वो चीज़ें नहीं है। समटाइम्स थिंग्स स्टार्ट वर्किंग, जो आप सोचते हैं उन्होंने देखा है एज ए टीम एज ए मैनेजमेंट कि हाँ क्या कमी थी हमारी, लास्ट टाइम भी स्पिनर हमारा ऐसा नहीं था, फिर हमने गेम प्लान्स में कुछ चेंजेस करनी है, वो लेके आए। एंड देन दिस सीज़न जो अच्छी चीज़ ये है कि अपनी गलतियों से सीख के वो आगे उन्होंने उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। बीइंग टीम मैनेजमेंट जिसमें कि ज़ाहिर है कोच भी है, कप्तान भी है, तो अब उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल से बेहतर है, जो कि एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। थोड़ा प्रेशर भी ऑफ हुआ ना, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान टीम के जब कप्तान होते हैं और आप जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट हार रहे होते हैं तो आप पे प्रेशर बिल्ड होता जाता है और आप ऐसा लग रहा होता है कि आप एट टाइम्स प्रूव करना चाह रहे होते हैं, और जब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं वहाँ पे आप फिर उस प्रेशर फिर लेते हैं। और अभी पिछले मैच जो 20 रन रह गए थे 21 रन 2 ओवर में, आरिफ याकूब को जब ओवर दिया बड़े काम खड़े हुए थे वो, बिकॉज वो प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान टीम वाला प्रेशर साइड पे हो गया। सो ही इज़ जस्ट फोकसिंग, पेशावर ज़ल्मी रिलैक्स है, खुदा न खासा मैच हार भी जाते हैं तो ही डजंट वरी, इज़ नॉट वरीज नहीं है उतनी जितनी शायद पिछले साल हो। और मे बी ये भी हो सकता है उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त रही है, एक्सेप्शनल रही है इस HBL PSL तो के अंदर। हमेशा सो भी- आई थिंक दैट इज आल्सो अ बर्डन ऑफ हिज वो, एंड मे बी ही इज गेटिंग ए टीम व्हिच इज रिस्पोंडिंग टू व्हाट ही वांट्स टू डू एज अ कैप्टन। मे बी दैट इज द रीजन व्हाई ही इज यू नो मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट वसीम in captaining with all the team members. Good morning, Wasim. एक बड़ी तू तो उधर की तो है, आंसर तूने मेरे से मांग लिया है। मैं- ये बात कर रहा है तो हाँ करें तो इसका वसीम। एक बड़ी फाइन लाइन है, देखें बड़ी फाइन लाइन है। अब देखें आरिफ याकूब को जब गेंद दी उन्होंने 20 उस ओवर में भी हो सकता था। एंड देन जो हमारे सारे जो अभी रिमार्क्स हैं या जो भी हम वो बातें कर रहे हैं, हो सकता है हम उलट कर रहे होते कि यार ये क्या इसने किया। लेफ्ट हैंडर एक सेट खड़ा है, 75 पे खेल रहा है, उसके सामने आपने लेग स्पिनर को बॉल दे दिया। Right. वो ये हो गया, वो गया। Changing the subject. अब जैसे हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ गमले भी सियाने। तो इस मरतबा क्योंकि हर चीज़ वर्क कर रही है, प्लेयर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमें Everything वो works. जीतते नज़र आ रहे हैं, टीम जीत रही है, सब चंगा है। दूसरे एंड के ऊपर शाहीन की कप्तानी के अंदर अगर लाहौर के अंदर इस बार बुरा कर रही है, प्लेयर अच्छा नहीं कर पा रहे, तो हमें That's- बहुत से yeah, नुकसान yeah. ब्लेम तो स्किपर को होता ही है, होता क्रिटिसिज्म। अगर होगा। स्किपर अच्छा कर रहा है, टीम अच्छा कर रही, क्रेडिट भी जाता है उनको, कप्तान को। जी, जी। और अगर बुरा कर रही हो तो फिर क्रिटिसिज्म भी आप होता है अगर कप्तान क्रेडिट ले पे। सकते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी हाँ, बनना आपको ये भी लेना चाहिए। मैं चेंजिंग द सब्जेक्ट, क्विक वन, ब्रेक जाने से पहले मैं सोशल मीडिया पे नोट किया कि हम पाकिस्तानियों को एक दो लफ्ज़ आ गए हैं। अब वो इतना बेदर्दी से यूज़ कर रहे हैं उस लफ्ज़ को। एक है क्रिंज Cringe. आहो। और एक है एजेंडा। अच्छा। दो लफ्ज़ सीख लेते हैं, कोई तीसरा लफ्ज़ भी लब लो। ना इन्होंने चैलेंज करो एंड ओना ने इंग्लैंड ने बस बॉल शुरू की था, पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ तेज खेला था, पाकिस्तान ने कहना शुरू करता है पाक बॉल। सोचना ना, बरीज कर लेना चुप करके। क्रिंज होता है ना एंड बंदा एजेंडा। अपना कोई लफ्ज निकाल ले, कोई डिक्शनरी दे के कोई नया, बट नहीं, नहीं। ये इन्होंने डिक्शनरी देख के ये लफ्ज निकालते हैं, वरना इनको पता थोड़ी है इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। या All right, folks, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we'll talk about the action that we have in store for you today. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9। हम बात कर रहे हैं आज के मुकाबले की। टुडे इट इज कराची किंग्स क्लैशिंग विद मुल्तान सुल्तान्स। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे HBL PSL 9 के सीजन के हवाले से। अब आइए जरा नजर डालते हैं कि आज आपके लिए कौन सा मुकाबला इन स्टोर है। वी गॉट अ गेम फॉर यू इन स्टोर फ्रॉम कराची एंड इट इज कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। ये 7 बजे बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश होगा। कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची नेशनल स्टेडियम से बराह रास्त आपकी खिदमत में। आपसे कुछ लम्हात बाद आप लोगों की स्क्रीन्स के ऊपर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले कि इसके बारे में बात की जाए, आए लेट्स टेक अ लुक एट हेड टू हेड बाय यूफोन 4G। Head to Head. Brought to you by Ufone 4G, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो।
और ये रही हेड टू हेड काउंट इन दोनों टीमों की आपस में। इनके टोटल 14 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 6 कराची ने जीते हैं, 6 मुल्तान ने जीते हैं और 2 के नो रिजल्ट्स हैं। सो दे बीन इवन स्टीवन्स थ्रू आउट, अगर आप एचबीएल पीएसएल की पूरी तारीख पर नजर डालें। लेकिन पिछले 6 मैचेस जो इन्होंने आपस में खेले हैं, उसमें से कराची ने सिर्फ 1 और मुल्तान ने 5 मैचेस जीते हैं। दैट हैज बीन द रीसेंट हिस्ट्री इन द एचबीएल पीएसएल. So that's what it looks like head to head. Wasim, I assume you would say कि stats हैं, पुराने हैं, it doesn't matter, it's the game on today. मेरे सवाल का जवाब तो यही आना है. बस. So but how would you comment on that anyways? Let me ask you नहीं, that. क्रेडिट टू मुल्तान, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अजहर ने एक्सप्लेन किया है, हफीज़ ने एक्सप्लेन किया है. Even this year, every year, they have been, just winning games, especially against Karachi. Yeah. I mean, last year हमारा जो मैच था इनसे मुल्तान में 200 किया इन्होंने. I think रिजवान ने 100 किया था 65 बॉलों पर. हमें आखिरी ओवर में I think 10 चाहिए था, छिक्का भी मार दिया उसने, बेन कटिंग्स ने, और कप्तान भी सेट था, 40 पे खेल रहा था. वो आखिरी 3 गेंदों पे स्कोर ही नहीं हुआ. So close games, but again it's a new game, new tournament, and a lot rely this on ये मैच important कराची के लिए ज़्यादा है, because ये उनका छठा मैच है, वो 4 पॉइंट पे हैं, और अगर खुदा ना खासा ये मैच में कुछ हो जाता है, then they'll be chasing their tail. Right. So this is do or die kind of game for Karachi to win. मैं एक सवाल पूछना चाहता सदका सदके बड़े देते हैं लास्ट टाइम. सदका बैठा तो आया थे सदके से तो उठाया था. हफीज फिर सेम भाई को देखे ना, 2-3 साल ये साथ रहे, तकलीफ आई, टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेल सके, 1 या 2, तो उन्होंने उसके बाद सदके के तौर पर उनको हटाया ना कि यार आप अलग तो होके देख लेते हैं, लेकिन वो फिर भी अभी तक उस जगह पे खड़े नहीं हो सके. एक्चुअली गल ठीक कर रहे हैं. नहीं, on a serious note, इस साल मेरा भी मूड नहीं था, because you see, You had winning matters, sure, but I also understand, I know that it's a Lot of game, pressures. boys try, वो नहीं होता, but बाहर जो बैठ के फिर the stress I've been through, it's tough. You get involved, you have to go to practices for 4 hours, and you have to attend meetings every day. It just get too much. I've done 8 PSLs, staying in a hotel for a month. And idea was to take a break this year. Yeah. But fortunately... Yeah, you told us this in the pavilion. पिछले World Cup में आपने कह दिया था, I'll be taking a break from the PSL. You announced that. But you're still the president of Karachi. Yeah, still the president and the mentor. But वो मैं सिर्फ क्या उसे कहते हैं. सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस लेवल्स की आपके मौजूदा सूरत हाल में भी क्या सूरत रहती है? देखिए, अब वो उतना स्ट्रेस नहीं है. Obviously, I want Karachi to win, because I suppose कि अगर आपने किसी भी टीम को वो करना है सपोर्ट या फॉलो, तुम ऑल द वे जाएं. ये नहीं कि अच्छा कर रहे हो तो जाना है और बुरा कर रहे हो तो नहीं जाना. सही. सो टुडे मेरी प्रेडिक्शन भी कराची किंग होगी, पहले से मैं कराची किंग्स होगी, पहले से मैंने आपको बता दिया. ठीक है भाई, ये तो आपने फिर हाफ वाली दे दिया. लोगों ने कहा यही वजह है. देखो, अगर लोगों के डर से जिंदगी गुजारनी होती तो मैं पता नहीं उत्थे होता जेड़ा सामने बैठा ना, सब तो पहले इतने भूलने नहीं दे रहा. मैंने क्या कहा? Valid question. I didn't say anything. Valid question. I just asked you a question कि स्ट्रेस की क्या हालत होती है? Not as much, but As much नहीं होता ना, but थोड़ा डाउन तो बंदा होता है फील यार. अब ड्रेसिंग रूम देखा मैं उस दिन, मेरे आंसू आ गए थे जब मैं देख, आप बिल्कुल हज़ारों कतार रो रहे थे आप उस दिन. कराची किंग्स से टिश्यू पेपर के 2 डब्बे खत्म कर दिए कराची आपने. किंग्स से एक रिक्वेस्ट है, 160 तो ज़्यादा भी स्कोर कर लो यार. हमें पता है आप जहाँ से आते हैं ना. सीरियस और सीरियस नोट, कराची की ट्रबल जो है, एक तो वो भी है बैटिंग में, जब बैटिंग कर रहे हैं वो यही है कि ओपनर्स ने अभी तक 50 तक की पार्टनरशिप नहीं की और 3 ये पेस ट्राई कर चुके हैं. सो इनका ओपनिंग अभी तक सेट नहीं हो पा रहा. कप्तान थोड़ा क्वाइट जा रहा है, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक क्वाइट जा रहा है. ही हैज़ टू other day, ठीक है, when I saw him on television while Karachi was batting and they were under pressure a bit, he looked like that there was a stress on his face. Because अभी तो halfway tournament में है, as a captain you should be positive, maybe not कह के नहीं मारो, but you have to have that calmness on your face when the camera comes to you, because apart from people, the team is looking at you indirectly. Right. अगर you feel अगर टीम को फील हो रहा है कप्तान थोड़ा गिरा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं. सो ये एक मेरा मैसेज है शान को. जो वसीम भाई, एक बैटिंग में भी एक फैक्टर है कि जब आप टॉप ऑर्डर पे स्पेशली जाते हैं, कोई विकेट नहीं गिरी, यू गो देयर एंड यू एंजॉय. बेसिकली आप जो पहले मैंने देखा है शान को कि वो जब टेक ऑन करता है बॉलर्स को, तो ही वाज एंजॉयिंग दैट रोल. अभी जब आप थोड़ा सा, क्योंकि हम भी जब ऐसी सिचुएशन में आप खेलते हैं ना कि आप कहते हैं नहीं करना है, कुछ करना है, एंड देन यू ट्राई टू बी अग्रेसिव,
तो वो आपके ना फेस पे या ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं नज़र आता है। नहीं, आपने फिर अपने माइंड को भी फ्री करना है, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स करनी है, एंड देन यू जस्ट माइंड फ्री हो के जब आप चांसेस लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क और करती मेरी हैं। एक एडवाइस कराची किंग से है, बड़ी सुन से है कि प्लीज़ एक एडवाइस दूंगा, वो ये है कि प्लीज़ नवाज नू नंबर 8 से बैटिंग करा दियो बस, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आसमान गिर जाए, ज़मीन फट जाए, वो नंबर 8 भी आए बस। उन्होंने 4 भी ट्राई कर लिया, 5 भी ट्राई कर लिया, 3 भी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं होया, उन्होंने 8 से रखो। अनवर अली आ गया, क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया उसने। आप इरफान को 6 पे खिलाएं, 6 प्रॉपर बैटर हो गए आपके, जो मिसबा से भी डिस्कस कर रहे थे हम। 2 फास्ट बॉलर, तीसरा अनवर अली, अगर जो भी 2 खेलेंगे इनके, और अब तबरेज़ को खिलाना है कि जाहिद तो खेलेगा, उसने पिछले मैच में अच्छी जाहिद ने अच्छी बॉलिंग किया। आई थिंक दे हैव द स्पिन ऑप्शन। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शोएब मलिक को पूरा यूटिलाइज करें। पिछले मैच में भी 1 ओवर उनका बच गया था, जो शायद कि एक बहुत बड़ा एक डिसीजन भी हुआ उनका। अगर वो 1 ओवर पहले कर जाते कहीं पे भी पावर प्ले में, उनको यूटिलाइज नहीं किया, तो दैट्स समथिंग वेरी गुड एंड पॉजिटिव फॉर देम। पोलार्ड को मिस करेगी आज कराची किंग्स अजहर? बिल्कुल, पोलार्ड जो 2 मैच जीते हैं या इवन बाकी मैचेस में भी कंट्रीब्यूशन लास्ट मैच को निकाल के पोलार्ड की बहुत ज़्यादा है। एवरेज आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त है उनकी, एक स्ट्राइक रेट भी ज़बरदस्त है, और सबसे अच्छी बात है कि जो फिनिशर के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन मिडल में बारी आई, अर्ली बारी आई उनकी, जिसमें उनको थोड़ा कंसोलिडेट लेके चलना था टीम को, उसको लेके भी चले, और बॉलर पिक करके उन्होंने अपने जो ना स्कोर को एक्सेलरेट भी किया एट टाइम्स। बट मिस करेंगे ऑब्वियसली, पता नहीं कि बाकी उनके जगह कौन आता है, डिप्लोई फिट हुए हैं कि नहीं हुए, पूरी तरीके से मैच फिट हुए हैं कि नहीं, तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर है। बट अगेन हमने देखा कि प्लेयर्स जो लास्ट मैच में भी हेल्थ इश्यूज़ आए, लेकिन एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ। आई थिंक कि समटाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलती है बाकी प्लेयर्स को, शायद आप उन पर इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, तो वो आके परफॉर्म करते हैं, तो आपको एक राइट बैलेंस समटाइम मिल जाता है। तो आई थिंक कि राइट बैलेंस इनको मिल गया। थोड़ी सी और सोच विचार करके ये थोड़ी सी ट्वीक्स और करें, आई थिंक दे कैन पुल ऑफ टुडे। आई थिंक इनकी जो मेन प्रॉब्लम है गाइस, फीज, यू माइट एग्री विद मी, कि इनकी जो लास्ट के 2 ओवर है वो कोई स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है। सैम डैनियल सैम्स फिट हो गया, बट हिज इकोनॉमी रेट इज टू हाई। सो दे व्हेनेवर यू पिक अ टीम, यू डू मेक श्योर यू पिक अ बॉलर और 2 हु आर रेगुलर बॉलिंग इन द लास्ट 2 ओवर्स। वो बड़े ज़रूरी हैं, किसी रैंडम बंदे को नहीं फेंक सकते कि यार तू कर ले लास्ट ओवर आके। Yeah, they have to have that specialist. ये आपने पहले भी पॉइंट आउट की थी। आई थिंक कि हसन अली को अब ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और साथ उनके मीर हमजा हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग एज अ प्रीमियर फास्ट बॉलर, तो आपने 4 ओवर 2-2 ओवर आपने पहले 6 ओवर्स में करने हैं, एंड देन यू हैव टू बी बॉलिंग लास्ट एटलीस्ट 3 ओवर्स ऑफ द इनिंग, इम्पोर्टेंट ओवर्स। तो ये जो मर्जी हो, तीसरा भी खेल रहा होगा तो सीनियर बॉलर फिर यही बनते हैं। They have to deliver basically. They have to. शान मसूद की कप्तानी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे हफीज़? Has he been is he the same captain or player that was when he was with Multan Sultans? Is he under pressure with the Kings? What is going on with him? Because his batting is also off color here right now. देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो अच्छा कप्तान है। मैं मानता हूँ कि वो अच्छा कप्तान है। ठीक है, इस सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, ठीक है, ये भी मानने वाली बात है। सही है। लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूँ कि कप्तान का इंडिविजुअल खुद परफॉर्मेंस देना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। सही। जब आप खुद अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो आप एक रिस्पेक्ट विद इन द ग्रुप, आप कहीं ना कहीं पे आपको खुद अथॉरिटेटिवली आप उसको इम्पोज नहीं कर रहे होते। तो इसकी अपनी परफॉर्मेंस इस मरतबा डाउन है। एज ए बैट्समैन ही इज़ इन अ डिफरेंट थाट्स, ही इज़ नॉट इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, आई बिलीव, एज ए बैट्समैन, जो उनको कॉज कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस जो एक कप्तान को मैनेज करनी होती हैं, जिसमें मीटिंग्स हैं, प्लेयर के साथ डिस्कशंस हैं, ये उसके अंदर या तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जो मेरा यही मशवरा होगा, अगर शान सुने इस बात को, कि वो अपने आप को इन तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर करके जब उनके हाथ में बैट आए तो सिर्फ एज ए बैट्समैन अंदर जाएं। और इनको हैंडल करने के लिए जो बाहर एक दथा बैठा हुआ है, जो 8-10 लोग आपकी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, दिस इज़ देयर वर्क टू मैनेज मैनेज दैट पार्ट बेसिकली, कि एज ए टीम मैनेजर, एज ए टीम डायरेक्टर, एज ए टीम कोच, एज ए बैटिंग कंसल्टेंट,
दिस इज़ द रोल यू नीड टू प्ले जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट मोर कंफर्ट टू द Right. कैप्टन कि वो अंदर जाए और अपनी क्रिकेट खेले। यस, अंदर की जो एक मैनेजमेंट है वहाँ पे आप उसको सपोर्ट करते हैं जब वो फील्डिंग कर रहा हो, लेकिन जब वो बैटिंग में डग आउट में बैठा हो या उसने जाना हो, इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस तंग करती हैं। अभी मैं ये समझता हूँ कि शान के लिए अगर ये खुद परफॉर्म करते हैं तो आपको एक बदला हुआ पूरी शक्ल नज़र आएगी, क्योंकि जब जैसे बाबर आजम की बात करें तो इस मरतबा उनकी परफॉर्मेंस से टीम जीत रही है, तो ऑटोमेटिकली हमें हर चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है। यही वो बाबर आजम थे जब वो परफॉर्म करके टीम नहीं जीतती थी, तो हम लोगों में से ही कुछ ना कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि यार ये काम ठीक नहीं किया, ये काम ने ठीक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एज ए कप्तान ये समझने की ज़रूरत है कि कप्तान कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जब उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही हो और उसको राइट वे में जो है सपोर्ट मिल रही हो तो हर चीज़ ठीक ठीक लग रही होती है। Yeah, makes a huge difference how the team is performing. वसीम, ऑन दी बॉलर्स अपने फिनिशिंग का आगे जी, दो बॉलर जो आखिरी ओवर करने वाले जो हैं, आखिरी दो स्पेशलिस्ट हमारे पास कराची किंग्स के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आज उनका मुकाबला मुल्तान सुल्तान से। उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और जो उन्होंने लोकल पिक की है मोहम्मद अली की, दैट इज़ रियली पेड ऑफ रियली वेल। Yeah, so is Karachi Kings missing the local knowledge of the first class and not picking up the guys? ने रखा हुआ है असिस्टेंट कोच जो है कराची किंग्स का, पिछले 4-5 साल से है, वर्क विद हिम, ही वर्क्स एक्सटेंसिवली इन डोमेस्टिक क्रिकेट। Right. ये उनके काम है कि हम कराची किंग्स को बताया कि ये लड़का अच्छा है। लड़का एक अच्छा होता है, एक लड़के का टेम्परामेंट होता है, दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं आपको। अच्छा, उसके स्टैट्स अच्छे, वो स्टैट्स किस सिचुएशन में बने, किस ऑपोजिशन के खिलाफ बने, आइदर वो विनिंग कॉज में बने कि लूजिंग कॉज में बने, ये सारी चीज़ें, उसका एटीट्यूड क्या है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वो सारा बताना होता है। खाली स्कोर देख के तो कोई भी बता देगा ना कि इसने अच्छा बैट्समैन है, ये अच्छा बॉलर है। आपने पूरा एक पैकेज देखना होता है। देखें, 3 प्लेयर ऐसे हैं, अरफात मिनहास, सिराजुद्दीन और मोहम्मद रोहिद। ये 3 वो प्लेयर हैं जो कराची के साथ मुंसलिक होकर अभी तक वो हमें कहीं नज़र नहीं आए। और जो कई प्लेयर ऐसे हैं, जैसे हम आमिर खान की बात करें या मोहम्मद इखलाक की बात करें, Right. जो एक 2-2 मैच खेले लेकिन वेल यूटिलाइज नहीं हो सके। तो टैलेंट अगर आपके पास मौजूद है और जब तक आप उसको अनलिश नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। और अगर वो नहीं थे अच्छे तो फिर आपने अपने स्क्वाड में क्यों लिया उनको, और अगर लिया तो उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो ये 3 मैंने आपको पॉइंट आउट किए। अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि मुज़र रबानी इन द लास्ट गेम ही बोल्ड वेल, ही कैन आल्सो टेक दैट लोड ऑफ बॉलिंग इन द डेथ ओवर। लेकिन वो जो मिसबा की बात है कि हसन मीर हमजा हैज़ टू टेक दैट लोड कि यार ये हमारा रोल है और हम करेंगे और हम ये करके देंगे। ये जरा नजर डालते हैं। सॉरी वसीम, आई जस्ट वांट टू शेयर मुल्तान का और कराची किंग्स के फास्ट बॉलिंग का जो स्टैट है इस पीएसएल का, ये इसके ऊपर जरा नजर डालें। आर द 2 बेस्ट बॉलिंग टीम्स इन दिस पीएसएल, मुल्तान एंड कराची बोथ। देखें, मुल्तान ने 32 विकेट ली हैं, 7.77 इकोनॉमी, very good average, and I think Mohammad Ali has a lot to contribute to that. And then Karachi Kings is right behind them, okay, with almost half the wicket, 17 विकेटें उनकी, लेकिन much better than other teams right now. या डेफिनेटली आप देख लें, आप जो इकोनॉमी रेट है वो देखिए उनका, मुल्तान का ऑब्वियसली विकेटें ली हैं, एवरेज भी 19 से कम की है। कराची दूसरे पे आ गया है, 9 का इकोनॉमी रेट है, हाई है, एवरेज भी थोड़ी हाई है। और बाकी टीमों का तो आई सपोज फड़कास पड़ी है फास्ट बॉलर्स को ठीक ठाक। लुक एट लाहौर, 2 of the premier fast bowlers of Pakistan, world cricket, are in their squad. Yes. Shaheen and Haris Rauf, and they went, look at average 20 wickets, which are averaging almost 44 per wicket, and that's quite a lot and very high economy rate too from Lahore. Islamabad looked really good on paper with fast bowling struggling. Quetta अगेन स्ट्रगलिंग, इनकी फास्ट बॉलिंग सारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं मोर लेस अपार्ट फ्रॉम मुल्तान। कराची किंग्स की एक चीज़ आप देखें कि 17 विकेट्स ली हैं इन्होंने, एवरेज कम है 9.07, जबकि 2 मैच ऐसी पिचेस पे हुए हैं कि जो लो स्कोरिंग पिचेस आप कहेंगे। 165 हुआ, और पहली पिच भी हमने देखी जहाँ पे स्पिन जिस तरीके से हो रहा था, तो वो थोड़ा सा है। आप अगर पिचेस ऐसी हैं तो उससे आपको उल्टा आपका इकोनॉमी रेट नीचे आने की बजाय ऊपर जा रहा है, तो देन इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, डिफरेंट स्टोरी। 165 आप अगर डिफेंड कर रहे हैं 2 दफ़ा और आपकी एज अ फास्ट बॉलर इकोनॉमी फिर 9 से ऊपर है, इट मींस आपको 8 एंड ओवर चाहिए और इकोनॉमी 9 पे जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम आता है। लास्ट गेम में भी देखें तो हसन अली 39 रन्स, 2 विकेटें उन्होंने ली 4 ओवर्स में, बट दैट कुड हैव बीन डिफरेंट। अगर वो वहाँ पे 5-6 रन्स और कहीं सेव करते तो आखिरी ओवर में जो रन हुए हैं वो शायद उस तरीके से ना होते। और हसन का जो बैक ऑफ लेंथ बॉल कर रहा है उसको छिक्का ही जा रहा है, यहाँ तो वो करे पूरा बाउंसर,
और यहाँ वो ना करे वो बॉल, बिकॉज पेस इज़ नॉट एज मच, स्पेशली ये कराची वाली पिच पे अगर करना है तो वो स्लो वाला करे, और वो भी पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में अगर ड्यू हो जाता है तो वो स्किट कर जाता है स्लो बॉल, बड़े आसानी से रेडार में आ जाता है बैटर्स के। आई थिंक वहाँ पे उसको काफ़ी मार पड़ी है। एक चीज़ मिसबाह, हफीज़, वसीम, आप सब के लिए ये क्वेश्चन है, ये जो हम अभी इकोनॉमी रेट्स देख रहे थे सारे, यू नो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग एंड यू पॉइंटेड दैट आउट कि लाहौर कलंदर्स के पास जो हमारे दो स्टार बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम के, शाहीन एंड हारिस रऊफ एंड जमान and Zaman, तीन वो हो गए, and then Islamabad United right above them where Naseem Shah is there. Yeah. And should this be a point of concern for us, for the team, or are they, because they're in a different environment, playing in franchise cricket, playing in a different set of parameters? different environment, different pitches, different players. जब ये पाकिस्तान के लिए आएंगे वहाँ वेस्ट इंडीज़ की पिचों पे, आई थिंक these boys will be quite good. I reckon all three of them. और दूसरा थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स को एक डिसएडवांटेज, जो अभी मैं बात कर रहा था, मुल्तान को एक एडवांटेज मिला है प्लेइंग इन मुल्तान, वेयर उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिली है पिच से। पहले 6 ओवर में भी, बाद में भी फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ था। यहाँ पे लाहौर में वो नहीं था। लाहौर में राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर देयर वाज नथिंग फॉर द बॉलर्स। नॉर्मली कुछ मैचों में शायद थोड़ा बहुत हुआ है, बट ओवरऑल हाई स्कोरिंग पिचेस थी, और उसमें ज़ाहिर हर किसी को ही मार पड़ी है। जो भी आया यहाँ पे, इतनी टीमें, उन्होंने स्ट्रगल किया है यहाँ पे। Yeah, and what do you think? ब्रेक ले लो। चलो ब्रेक ले रहे थे फिर, देखिए ये that's what they think, break ले। All right folks, with that we're going to take a break here because my two friends on this side are not interested in a conversation. We see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचपीएल पीएसएल सीजन 9। हम बात कर रहे हैं आज के मुकाबले की। टुडे इट इज कराची किंग्स क्लैशिंग विद मुल्तान सुल्तान्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे दोनों टीमों की फास्ट बॉलिंग के हवाले से, एंड आई वाज टेकिंग व्यूज ऑफ ऑल द टीम पैनलिस्ट्स हियर इन द पेविलियन विद मी। आई हैव गॉट अजहर अली, मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक एंड द ग्रेट वसीम अकरम। आप कुछ कहना चाह रहे थे अजहर? ब्रेक आवाज ना दबाया करें, आपने आवाज दबाई है ना, आपने कहा ब्रेक ले लें, तो मैंने ब्रेक ले ली, उस बेचारी की आपने आवाज दबा दी। अब आप अजहर जो कहना चाह रहे थे आप जब भी ऐसी बात करें लेफ्ट पे एक दफ़ा देख लीजिए। हाँ, मैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा से फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, और जो करंट हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जब उन्होंने कैरियर स्टार्ट किए हैं अपने, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लेकिन लास्ट 6-8 महीने से आई फील के इट्स अ बिग कंसर्न, नॉट ओनली इन T20 वनडे, एवरीवेयर यू सी। जब से वो हैशटैग निकले सी ना, कांट प्ले देम, वो बस सारे ने खेलना शुरू कर देता उन्होंने। तो उसके बाद से आई थिंक डाउनफॉल शुरू हुआ है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द हैशटैग, बट जब आप इस तरह की चीज़ें शुरू करते हैं ना, फिर देखिए क्रिकेटर हैं अराउंड द वर्ल्ड, आपको एक दफ़ा खेलते हैं, 2 दफ़ा खेलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, देन दे गेट यूज्ड टू। तो शुरू है सर ना, बहुत ना सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं, बहुत सी एजेंसी पीछे बैठ के कंट्रोल करती हैं। हैशटैग निकला था कांट प्ले देम, तो उसके play बाद एशिया में अगर आपको एशिया कप में याद हो, हारिस रऊफ, शाहीन, एशिया कप में याद हो तो इंडिया पाकिस्तान का एक पहला जो मैच था, उसके अंदर जब जिसमें जो रेन इफेक्टेड था, वो मैच नहीं हो सका था शायद, तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पहले अच्छा किया था। वहाँ पे ये हैशटैग मेरा ख्याल चला, उत्थे काम जड़ा फिर वो अनफॉर्चुनेटली थल्ले होया। एंड ही इज़, आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। एशिया कप में आप देख लें, वर्ल्ड कप में देख लें, ऑस्ट्रेलिया टूर देख लें, न्यूजीलैंड टूर देख लें, पिछले 6 से 8 महीने के अंदर ये हमारे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स उस लेवल की परफॉर्मेंस। जब आप लोग इतनी सेंसिबल बात करते हो, तो जो सो कॉल्ड नॉट प्रॉपर जर्नलिस्ट, जो एक जर्नलिज्म दो स्टाइल के हैं ना। एक तो प्रॉपर जर्नलिज्म होता है क्रिकेट स्पोर्ट्स का, एक होता है जो सोशल मीडिया पे आके हर चीज़ पे जिसने बोलना है, एक वो जर्नलिज्म है। वो लफ्ज़ फिर ये यूज़ करते हैं कि ये एजेंडा बेस्ड काम हो रहा है, हालांकि तुम वो बात कर रहे हो जो है, जो लॉजिक है, जो है, जो फैक्ट्स हैं, जो ऑन पेपर लिखा हुआ है, राइट। तो जाए कि हम उसका एक आध मैच में होना तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन अगर वो पिछले 8 माह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और पाकिस्तान की वो जो एक विनिंग की वजह थी वो हमारी फास्ट बॉलिंग थी, तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त नहीं है। तो डिड यू हैव दिस कन्वर्सेशन जब आप टीम के साथ थे इन ऑस्ट्रेलिया? Yes, I had that and we had a lot of meetings on it. We wanted to make sure, इसीलिए उमर गुल जब आए, उन्होंने आके तमाम उन डाटास को शेयर किया कि ये हमने एशिया कप में किया, ये वर्ल्ड कप में किया, और बेहतर होने के लिए ये प्रोसेस हमें एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। एकदम से कोई इंजेक्ट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उन सारी चीज़ों को जब बताया गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली प्लेयर ने रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन अब
कोई साइंटिस्ट भी होगा ना तो 2 महीने में चीज़ें ठीक नहीं कर सकता। ऐसी बात है, तो that is- उसमें पे डाउट नहीं है, कैपेबिलिटी पे किसी के डाउट नहीं है, दे कैन डू इट, दे हैव डन इट इन द पास्ट, बट एट द मोमेंट वी आर नॉट द बेस्ट फास्ट बॉलिंग साइड इन द वर्ल्ड, जो हम Yeah, we कहते need to हैं। accept that. We need to मैं accept इसको that. जरा रिफ्रेज कर दूं आपके लिए, डोंट से एट द मोमेंट बट फॉर द रीसेंट पास्ट वी हैव नॉट बीन, हाँ, क्योंकि एट द मोमेंट तो होता ना कि जब I think पीएसएल में खराब हो गए इसमें एक बड़ा जो फैक्टर है मेरे ख्याल में, नसीम वाला जो फैक्टर है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। नसीम जब से गए हैं, नसीम जब से नहीं हैं, तो इफेक्टिवनेस जो है बाकी बॉलर्स की भी कम हो गई है, क्योंकि वो जो इफेक्ट डाल रहे थे इवन T20 में या वनडे में भी, वो बहुत बड़ा इफेक्ट था। करंटली आई थिंक कि नसीम इज़, ठीक है शाहीन ने बहुत परफॉर्म किया, बट नसीम इज़ मोर थ्रेटनिंग बॉलर विद द न्यू बॉल इन द मिडल एंड इवन एट द डेथ ऑल्सो, क्योंकि वो लेंथ बॉल करते हैं, पेस है एक, और वेरिएशंस भी हैं, बाउंसर भी तगड़ा करते हैं, रिवर्स स्विंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो हमारे जो बॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी सक्सेस एक थी, लोगों ने उसको अब समझ लिया है। बाकी टीमों ने मोस्टली हमारे वो जो टैक्टिक्स हैं फास्ट बॉलर्स के, इनकी विकेट टेकिंग डिलीवरी कौन सी, कैसे ये बॉलिंग करते हैं, दे अंडरस्टूड दैट। नाउ वी हैव टू बेसिकली चेंज दैट। So let me bring this question to you, Wasim. At any time did it happen कि अगर वकार नहीं है दूसरे एंड से, जब आप 2 Ws ऑपरेट सारा करते थे, मुद्दा पकारते पा दो, बाकी सारा माफ कर दो। मेरे so the idea is basically कि वो कह रहे हैं कि एक साइड से चूंकि नसीम शाह मिसिंग है, तो maybe our bowlers are not flourishing. Has it happened to you that if Waqar wasn't available on the other side, did that affect your performance? Did you feel it आई that थिंक way? मेरी भी नहीं हुई, वकार की भी नहीं हुई, वाइस वर्सा। अगर मैं इंजर था, वो अपना काम करता रहा है। Right. अगर वो इंजर था तो आई रियलाइज कि सारा किसी के बर्डन, जाने से इतना, हाँ सारा आप burden- कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो मैं समझता हूँ, लेकिन आप किसी एक को जो नहीं अवेलेबल उसकी ऊपर डाल के अपने आप को जो है बचा नहीं सकते। फ्री जोन नहीं दे नहीं, सकते। because Misbah said ना, maybe that is No, no, no. affecting I'm- him. I'm Naseem Shah. totally नहीं, मेरे कहने का मकसद ये So है कि basic- जो नसीम का इफेक्ट था वो नहीं आ रहा, और उसकी वजह से आपकी बाकी बॉलिंग भी कई Expose हो हद गई तक है। एक्सपोज हुई नहीं यार, है। they are also good, हमें- but they couldn't No, deliver that. that's not- we're I not- have my own way of saying it. मुझे लगता है कि किसी के भी जाने से थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो लंबी देर तक पड़ा है तो इसका मतलब है कि बाकी किस लिए इंतजार कर रहे थे? पाकिस्तान के यही बॉलर इंतजार कर रहे थे ना कि हमें मौका मिले। यही तो बात करने का मकसद है कि हु इज़ आवर रिप्लेसमेंट फॉर नसीम शाह। दूसरी तरफ से हमारे पास वर्ल्ड कप में वसीम जूनियर थे, नया बॉल नहीं करते, फिर हम हसन अली को लेके आए। उस तरह का बॉलर हमारे पास अभी तक नहीं है। ये हमारी जो वीकनेस मिसबा वो है, इस रेडी पे नहीं था ना हमने हुआ, काम किसी को करना मौका ही नहीं मिला। इसीलिए जब हम इस सीरीज़ में गए हैं तो हमने नए लड़कों को चांस दिया है। खुरम शहजाद वाज वन ऑफ दोज, आमिर जमाल वाज वन ऑफ दोज, अब्बास अफरीदी वाज इन दैट लिस्ट के। यार हम चाहते थे कि नए लड़कों को जब तक हम सामने उनके टैलेंट को अनलीश नहीं करेंगे, हम उसका फैसला नहीं ले सकते। तो यही सोच के जो अनफॉर्चुनेटली बैकअप तैयार नहीं किए गए थे, जो एशिया कप में इशू आया, जो वर्ल्ड कप में इशू आया, कि वही 8-10 प्लेयर ही खेल रहे थे। उनको उनके अलावा जो बाकी 8-10 प्लेयर हैं, जब तक उनको 8-10 मैच नहीं मिलेंगे, आप उनके मुतालिक राय नहीं बना सकते। तो यही सोच के उनको खिलाया गया था। All right, it's time to take a look at the numbers game. Right, जनाब, ये है आज की numbers game. आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर most wickets lost in power play in HBL PSL 2024, and it is unfortunately Karachi Kings that are right up top. But guess who is at number 2? It is Multan Sultans, the most successful team in this HBL PSL season 9. Peshawar Zalmi has been the most successful, and that shows you the Babar Azam and Saim Ayub effect for the Zalmi. Islamabad United also now with Colin Monroe coming to the party and getting up his form. Gladiators have a little bit of an issue, but they're also looking better, except for the last game or two. And of course, then you have the Qalandars and Multan Sultans and Karachi Kings. Karachi Kings, they need to be a little worried, and that's your numbers game. Wasim, does Karachi King need to take a look at the top order? Maybe any possibility of shuffling in the top order, or a different approach to the top order? वो बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि किसी भी अभी तक 5 मैचों में 50 की पार्टनरशिप नहीं, टॉप ऑर्डर में 3 पेयर ट्राई कर चुके हैं। सो दैट शोज़ के अभी सेटल नहीं हो रहा। कप्तान की फॉर्म आपने देख लिया, 5 मैचों में कोई स्कोर नहीं हुआ उससे। सो जब तक ये ऊपर से इन्हें पार्टनरशिप नहीं मिलेगी तो मेरा नहीं ख्याल ये लंबा स्कोर कर पाएंगे। हर जगह आके आज तो पोलार्ड भी नहीं है मेरे ख्याल में, वो नहीं है, बिकॉज कल तस्वीर उसकी आई, इतनी जल्दी इंडिया से आ नहीं सकता। हाँ, वो कल शाहरुख खान के साथ उनकी तस्वीर आई हाँ, है। पूरी फेस्टिविटीज अटेंड करके आएगा। Yeah, फेस्टिविटीज 4 दिन के लिए गए हुए हैं, and he's going to be there. Well, okay, well, that is interesting. But Misbah, what do you think? How should Karachi Kings go about their batting today?
मुझे लगता है कि यही 3 प्लेयर जो पिछले मैच में खेले हैं यही इनके बेस्ट हैं। इसमें अगर देखें शान मसूद, टिम सेफर्ड, जेम्स विंस, और उनको स्टार्ट्स भी मिले, थोड़ी झलक नज़र आई। 37 किया विंस ने, अच्छा खेल रहे थे। 21 किया टिम सेफर्ड ने, थोड़ा सा फील हुआ वो जिस तरीके से खेल रहे थे। शान को ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करना है कहीं ना कहीं। चेंजेस मुझे नहीं लगता कि चेंजेस से इतना को मसला हल होगा, चेंजेस करने से कोई फर्क क्योंकि नहीं ये थोड़ा सेटल डाउन शुरू हुए हैं तो लेट देम प्ले। पिछली इनिंग्स थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, एक थोड़ी स्टेबिलिटी आई, 4 पे मलिक हैं। उसके बाद आप ठीक है नीचे देखते हैं कि इरफान ने भी थोड़ा परफॉर्म किया। अगर पोलार्ड नहीं है तो 5 पे एक कंसर्न है इनके लिए, ऑब्वियसली नवाज़ को यूज़ किया इन्होंने पिछले मैच में। लेट्स सी इनके पास बैटिंग में उस तरह ऑप्शंस हैं। डुप्लॉय अगर ठीक होते हैं तो वो ऊपर आते हैं तो मलिक 5 पे जा सकते हैं, वो 4 पे खेल सकते हैं। होपफुली कि वो फिट हों अगर आज वो, उसके साथ फिर उनको बाकी भी थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। 4 ज़ाहिर है आपने खिलाने हैं फॉरेन प्लेयर्स, मुजरबानी को भी खिलाना है, तो ये इश्यूज तो हैं इनके पास। बट मुझे लगता है टॉप ऑर्डर को इतना छेड़ने की ज़रूरत नहीं। बट ऑब्वियसली जो सबसे ये टॉप ऑर्डर की बात करें, टॉप ऑर्डर का एक ग्राफिक आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये HBL PSL 9 की हाईएस्ट एवरेज ओपनिंग पार्टनरशिप्स हैं। अभी चूंकि वसीम कह रहे थे कि एक भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी, बट ये वर्स्ट एवरेज में अगेन मुल्तान सुल्तान इज राइट एट द बॉटम हियर वसीम, एंड देन इट्स कराची किंग्स the second worst as far as their opening pair concerned. सबसे बिकॉज वो वहाँ आई थिंक रिजवान से थोड़ा स्कोर नहीं हुआ है 2 कंसिस्टेंट, मरतबा वो जल्दी आउट हो गया, जल्दी आउट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे में कोई और जल्दी आउट हो गया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ज़ल्मी के दोनों ओपनर रन्स कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की 1 विकेट तो गिर रही है, लेकिन उसके बाद अगली विकेट पे उनकी पार्टनरशिप हो रही है। जैसे नंबर 3 पे आके पहले मैच में रन्स किए, विकेट कीपर जो है उन्होंने आके 96 कर दिया। तो नंबर 3 पे पहले रीजा हैंड्रिक स्कोर कर रहे थे, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 विकेट गिरती है, देन द नेक्स्ट पार्टनरशिप इज़ लाइक कि वो गेम को इतना लंबा ले जाता है वहाँ से क्या उनके फिर एंड के बैट्समैनों के लिए वो एक जो है प्लेटफॉर्म वो सेट कर देते हैं। हम बात कर रहे थे अजहर कराची किंग्स की डॉट बॉल्स की परसेंटेज की भी। ये जरा पावर प्ले का एक हमारे पास एक और ग्राफिक है। लेट्स जस्ट से दैट स्कोर पावर प्ले के अंदर जो स्कोर्स हैं उसके हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। दिस इज मुल्तान एंड कराची बोथ हैवंट स्कोर्ड मच। इफ यू कैन लुक एट दैट हाई स्कोरिंग रेट इन पावर प्ले इन दिस HBL PSL। ग्लैडिएटर्स आर राइट ऑन टॉप। जब ऑब्वियसली विकेट गिरती है तो आप यू नो प्रेशर में आ जाते हो, फिर कोशिश करते हो कि पार्टनरशिप तो ये बनाएं। 6 ओवर होते हैं ना, 6 ओवर का खेल है जो शुरू का पावर प्ले का, उसमें आप देख लें वसीम मुल्तान सुल्तान एंड कराची किंग्स बोथ आर राइट एट द बॉटम देयर। Multan shouldn't be worried because they're top of the table, man. Yes, they are. Area of concern, yes. Yes, area of But concern. obviously But then if they go into the playoffs and all that, that would be a very big area of concern. By then hopefully they'll be sorted out. फखर कंडीशंस का बहुत ज़्यादा से है इसमें, क्योंकि मुल्तान में उन्होंने जो 5 मैच खेले हैं वहाँ वे ऑफ प्लेइंग ही डिफरेंट था। वहाँ ये था कि पहले 6 ओवर्स में आपने प्रिजर्व करने हैं विकेट्स, 10 ओवर तक आपने जाना है और फिर आपने मैक्सिमाइज करना है एंड की तरफ। आगे उसको दैट वाज द सक्सेसफुल फार्मूला। यहाँ जाहिर है बाकी जगहों पे इनको चेंज करना पड़ेगा। हफीज़, आपने मोहम्मद अली को देखा, बड़ी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है अभी तक मुल्तान सुल्तान के लिए, मगर वो मुल्तान के अंदर थी। जो ही वो निकले वहाँ से और गद्दाफी स्टेडियम गए तो वहाँ पे उनकी जो फिगर्स थी वो वेरी डिफरेंट। आई मीन ही वाज नॉट लुकिंग एज डेडली एज ही वाज इन मुल्तान। आज कराची किंग्स को उनको अप फ्रंट कैसे खेलना होगा? बिकॉज व्हेन यू हैव समबडी लाइक शान मसूद लेफ्टी, ही गोज अराउंड वेरी फास्ट। आई मीन वो वेट नहीं करते कि 1-2 बॉलें में ओवर द विकेट कराऊंगा फिर मैं राउंड द विकेट जाऊंगा। एज सून एज द लेफ्टी कम्स ही गोज अराउंड टू कट द एंगल्स। हाउ डू यू सी दैट द कराची किंग्स ओपनर्स शुड बी टेकिंग ऑन मोहम्मद अली? व्हाट शुड दे बी डूइंग अगेंस्ट मोहम्मद अली? देखें, वो एक तो वो कामयाब होने की उसका राइट प्रोसेस है, उसने मुल्तान में भी वही हिट किया और सेम प्रोसेस है वो आए लाहौर के अंदर भी, और आई थिंक दैट विल रिमेन द सेम। तो टैक्टिक्स उनके को बहुत ज़्यादा बदलने वाले नहीं है। स्किल्स हम सबको पता है कि ही इज़ एग्जीक्यूटिंग हिज स्किल्स विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक आप कह सकते हैं कि जो दूसरे एंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डेविड विली कर रहे थे वो लाहौर के मैच में नहीं थे। तो अगर वो आज खेलते हैं तो हो सकता है ये उनकी फेवर में हो, क्योंकि विली का भी जो नए बॉल की 2 ओवर की कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये कराची के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं होता तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एज ए T20 प्लेयर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए फियर जोन में नहीं जाते। तो आई वुड लाइक टू सी दैट कराची बैट्समैन स्ट्रेट अवे टेक हिम ऑन। वो चाहे राइट वो राउंड द विकेट आए या ओवर द विकेट आए, शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि एज ए बैट्समैन जब तक आप
डोमिनेशन शो नहीं करते, बॉलर आपके ऊपर चढ़ता जाएगा T20 में। तो एज ए बैट्समैन समटाइम आपको आउट ऑफ स्किन ट्राई करनी चाहिए अपनी शॉट। अगर आप ये सोचें कि मैंने बुरे बॉल पे स्कोर करना है तो T20 आपको अलाउ नहीं करेगी। और तो इसलिए दूसरा हफीज़ ये भी तो है कि कराची में डिफरेंट है, मुल्तान डिफरेंट। कराची में जितना नया बॉल है वो बल्ले पे अच्छा आप बल्ले पे अच्छा आता है, उस टाइम पे आपने रन्स करने हैं। जो जो बॉल पुराना होगा, जो जो वो स्पिनर्स गेम में आएंगे और एंड के ओवर्स, देन फास्ट बॉलर्स हैव मोर से, तो आपको ये ज़हन में रखना है द बैटिंग टीम। It's really great conversation there with Mohammad Ali. Speaks really well. Very well, confident. Yep. And And 4-day enjoying- cricket को जो आप या कहते हैं हम हमेशा सारे उसी- कह रहे हैं, सारे यही कह रहे हैं कि 4-day क्रिकेट खेलोगे तो दुनिया के बॉलरों में आओगे, नहीं तो बॉलिंग का ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। वी हैव सीन, आई हैव टू नेम वन स्ट्रेट अवे, हारिस रऊफ आता है मेरे जहन में, मगर उनके कोच को लाहौर क्या कहते हैं कि इसको हमने T20 के लिए ही तैयार किया है। एज अ बॉलर, एज अ बैटर, इस फॉर्मेट में आपको हर फॉर्मेट का आपको क्रिकेट आनी चाहिए। आप किसी एक फॉर्मेट के होकर नहीं रह सकते, फिर आपकी जो टैलेंट है वो महदूद रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लंबी क्रिकेट खेलोगे तो और वेरिएशंस आएंगी, पेस बढ़ेगी, फिटनेस होगी, एंड ऑफ कोर्स द मोर बॉलिंग यू द बेटर यू बिकम। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही कि मैं तब तक अपनी विकेट्स एंजॉय करूंगा जब तक कि वो मेरी टीम के काम आती नहीं है। आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल स्टेटमेंट टू से समथिंग लाइक दैट कि मैं विकेटें ले लूं और टीम अगर नहीं जीत रही तो मैं उसको आई वोंट एंजॉय दोस विकेट्स। Really fantastic stuff there from Mohammad Ali and looking forward to seeing him in action today. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9. With me in the Pavilion, I've got 4 fantastic cricketing minds, 4 former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, Misbah-ul Haq and the great Wasim Akram. आज एक और मुकाबला है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इट इज़ कराची किंग्स colliding with मुल्तान सुल्तान्स. इसके हवाले से गुफ्तगू चल रही थी. ब्रेक में जाने से पहले हमने मोहम्मद अली का इंटरव्यू देखा, फास्ट बॉलर है मुल्तान सुल्तान्स के, और उसके बारे में हम बात कर रहे थे. और हमारी वी बीन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस गेम. बट मुल्तान सुल्तान्स, फॉर देम मिसबा, Rizwan has been a component, is a very strong component as a captain, as all-round presence in the dressing room. It looks like he's a very positive energy that he carries and he rubs off on the other players. बिल्कुल. और दूसरा मुझे लगता है कि जो ओवरऑल इनका एटमॉस्फेयर भी है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा इंटरनल प्रेशर नहीं है, जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं. पता उस वक्त चलता है जब टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, शुरू के मैचेस हारती है, एकदम से आपको अपने ऊपर बिलीव ख़त्म हो जाता है. जब आप जीतना शुरू होते हैं और आपके सारी चीज़ें ठीक चलना शुरू होती हैं, तो फिर एक थ्रू आउट द टीम जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपकी हेल्प करती है. और ओवरऑल अगर हम देखें नॉलेज ऑफ द प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स, फिर अपनी पिचेस का, फिर वो प्रीवियस जो उसका एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वहाँ पे कप्तानी का, अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने का, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि दूसरे प्लेयर्स को जितने भी खेल रहे हैं सामने, उनका भी पता है कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे खेलता है. और अपने प्लेयर्स का भी उसको मोस्टली पता है. जैसे वो इफ्तिखार को क्योंकि कॉन्फिडेंट थे, उसको वो लेके आए एक रोल में, खुश दिल को रखा हुआ है. हालांकि खुश दिल को कोई इतना ज़्यादा इधर उधर रेट नहीं करते लोग, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले सीज़न में बहुत अच्छी रही हैं. अभी पिछले मैच में नया बॉल करा दिया, 4 ओवर बड़े ज़बरदस्त कर गए, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उनका एक दूसरे पे. और जिसको भी बॉल देते हैं वो कॉन्फिडेंटली देते हैं कि हाँ ये कर लेगा, और प्रेशर अगर आ भी जाता है बीच में तो बैक करते हैं उसको. तो दैट इज़ बेसिकली वर्किंग फॉर देम. एंड देन 2 years की जो पिछली परफॉर्मेंस है वो भी आई थिंक होल टीम उस पे एक पॉजिटिव उसका भी इम्पैक्ट है. ये ज़रा विन परसेंटेज देख लेते हैं. ये विन परसेंटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो विन परसेंटेज है, हाईएस्ट विन परसेंटेज इन HBL PSL सिंस 2021, जब से मुल्तान सुल्तान्स के रिजवान कैप्टन बने, विच वॉज 2021. लुक एट देयर विन परसेंटेज, इट्स राइट अप देयर 69.04, फॉलोड बाय पेशावर ज़ल्मी, then Islamabad United, Lahore Qalandars, Quetta Gladiators and Karachi Kings. Unfortunately, Karachi Kings has the lowest win percentage since 2021. Yeah, we had 2 really bad PSLs. I mean, एक जो 2 उसमें हुई थी जिसमें बाबर कप्तान था, I think 8 मैच हारे थे, फिर पिछले साल 7 मैच हारे थे. तो obviously just to revisit those 2 PSLs, Wasim, what do you think were the maybe 2 primary reasons why you had such long losses back to back? look, there is no one cricketer you can blame. Right. पूरी टीम का ही था ब्लेम. दुबई में और अबू धाबी में जब हुआ, ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी 40 से ज़्यादा की,
40 रन 6 ओवरों में हो रहे हैं, 35 रन 6 ओवरों में हो रहे हैं, मैसेज भी दिए, कहा भी, बट दे प्रोफेशनल लड़के हैं. आई सपोज वन ऑफ दोज 2 seasons where we nobody clicked properly. Last year there were a couple of close games, but year before we were really got hammered. Yeah, so it has been a journey for Karachi Kings, and not to forget that Karachi Kings has won the HBL PSL trophy once. You know, they've had one great PSL behind them. Now, अभी हम ये रिजवानी की कप्तानी की बात कर रहे थे. Hafiz, how much do you believe that a captain can influence the team's energy and get them going? Because today, Shan Masood will be tested equally. देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम सब ये मानते हैं कि इस खेल के अंदर बाकी खेल के अंदर शायद कप्तान का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन इस खेल के अंदर सारा कंट्रोल ही कप्तान के पास है, क्योंकि फील्ड के अंदर सारे फैसले उसने लेने हैं, अपने टैलेंट को यूटिलाइज उसने करना है. फील्ड के बाहर जब वो बैटिंग में भी आता है तो भी उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. तो मुझे लगता है कि कप्तान का अच्छा परफॉर्म करना, जो हमने पहले बात की है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के गेम में. एक करेक्टर भी नज़र आएगा शान, क्योंकि मैं ज़्यादा तौर पर उनका एडमायरर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी अच्छे प्लेयर के लिए ज़रूरत होती है. लेकिन इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है, उनको अपने आप को लिफ्ट करना है. फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. वो 5 मैचेस वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये छठा मैच जो है ये सब कुछ साबित कर सकता है, और वो वन गेम एट वन टाइम लेनी चाहिए शान को. लेकिन अगर आप उसकी तरफ जाएँ, रिजवान की तरफ, तो देखें उनकी एक सक्सेस स्टोरी चल रही है. पिछले 3 साल की कप्तानी में वो सक्सेसफुल होने की राइट रीजंस ये हैं कि वो बेसिक्स ऑफ द गेम के पास रहते हैं. अपने प्लेयर को यूटिलाइज़ करते वक्त उनका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है. उन्होंने 3 ओवरसीज़ भी खिलाए हैं, तब भी उन्होंने मैच जीते हैं. नए प्लेयर को खिलाते हुए डरते नहीं हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं, और वो प्लेयर भी रिस्पॉन्ड करता है. तो समथिंग स्पेशल एट वन साइड. जो टीम जो है वो टीम वर्क पे जो है बिलीव करती है, प्रोसेस पे बिलीव करती है. कराची की टीम एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस का इंतज़ार कर रही है. पहले 2 मरतबा पोलार्ड ने किया. अगर आज भी उनको, मुझे लगता है, जीतने के लिए अगर राइट कंपोजिशन की बात करें तो शायद वो स्ट्रगल करें, लेकिन अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस आए तो कराची जीत सकता. Absolutely. How important will Osama Mir be today for Multan Sultans? He's been doing really well throughout this HBL PSL. A very different bowler to what we saw him in the World Cup. Azhar? नहीं, बिल्कुल. जिससे पहले भी जिक्र किया, कंसिस्टेंसी बड़ी हुई है, लाइन लेंथ पे कंट्रोल है. तो आई थिंक एज ए लेग स्पिनर T20 क्रिकेट में आपको विकेट्स तो मिलेंगी, लेकिन आप कितनी देर तक अपनी लाइन और लेंथ्स को होल्ड कर सकते हैं. अंडर प्रेशर जब आप आते हैं तो आप कौन से एरिया हिट कर रहे होते हैं. तो आई थिंक ही इज़ बीन बॉलिंग रियली वेल, बट अगेन टू कंटिन्यू दैट इन लेटर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट विल बी की. उसका लेग स्पिनर का रोल किसी भी फॉर्मेट में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो विकेट्स दिलाता है, इन टाइम ऑफ पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू देता है. तो आई थिंक लेग स्पिनर पीछे 6 विकेटें भी ली है एक मैच में, और हालांकि मैं समझता हूँ कि उस फैसल अकरम ने ज़्यादा अच्छी उस मैच में बॉलिंग की थी. लेकिन different bowler altogether when he plays here, and unfortunately, unluckily for him, maybe international cricket में pressure आ जाता है. अभी न्यूजीलैंड में he was bowling slow, full tosses, कोई पेस नहीं. देखो ना, यहाँ तेज़ बॉलिंग कर रहा है. T20 में आपको थोड़ा तेज़ बॉलिंग करनी पड़ती है, और he is one of the highest wicket takers in this PSL. और उसी में जैसे देखते हैं ना कि जो 50 ओवर फॉर्मेट है ना, उसके अंदर जो 5वां फील्डर अंदर आता है, तो ये जो कैच होते हैं ना मिड विकेट पे, और ये जो डीप के फील्डर आपको एक एक्स्ट्रा T20 में मिला था, वहाँ पे एक कम होता है. तो वो फिर आपके ऊपर, आप 3-4 अच्छे बॉल करते हैं और एक गंदा बॉल हो गया, आपका ओवर गया, क्योंकि 6 रन 7 रन ओवर में बन रहे हैं, बैट्समैन जीत रहा है. Yeah, that has been for Misbah Karachi Kings. Who are the bowlers they should be targeting? हमने बात सुन ली जो हफीज़ ने कही कि जब मोहम्मद अली ऑपरेट कर रहे हों तो डोमिनेट करने की उनको कोशिश करें. The openers should be trying to should try to dominate. But in the middle overs, और हम बार-बार अगेन हफीज़ ये बात करते हैं कि जी 7वें से जो 15वें ओवर तक का खेल जो है वो बड़ा क्रिटिकल होता है. And a lot of teams have lost their way in those middle overs. What should be Karachi Kings' approach in those middle overs, and who do you think in the current Multan Sultans bowling lineup should they be targeting? आई थिंक जो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट मिस हो रहा है कराची के लिए वो शोएब मलिक भी हैं बैटिंग में. क्योंकि शोएब मलिक जिस किस्म के बैट्समैन हैं फ्रॉम 7 to 15 एंड इवन आफ्टर दैट, वो बड़ा एक ज़बरदस्त उनका रोल है और उनको प्ले करना चाहिए यहाँ पे इन द मिडल ओवर्स व्हेन ओसामा इज़ बॉलिंग. स्पिनर्स जब बॉलिंग करेंगे
तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि जो 8 एंड ओवर 7 8 एंड ओवर वहाँ पे लेके चल सकते हैं और डोमिनेट कर सकते हैं इनके स्पिनर्स को। आई थिंक ऊपर तो ठीक है, आपने नए बॉल पे यहाँ पे कराची में कोशिश करनी है कि फर्स्ट 6 ओवर्स आर इम्पॉर्टेंट, 50 प्लस रन नॉर्मली जो पिच होती है आपको करने चाहिए, बट इन द मिडल ओवर्स 7 to 15 जो भी ऊपर टॉप 3 में से एक बैट्समैन सेट है एंड देन शोएब मलिक। मिडिल के ओवर्स में आपने रन्स करने हैं, उसामा के अगेंस्ट आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। आपको क्रिकेटिंग शॉट्स नॉर्मली जब कोई बड़े हिट्स लगाने जाते हैं आप उसामा के अगेंस्ट तो आउट होने के चांसेस और विकटें लेते हैं, लेकिन जब आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं और आपको पता होता है कि बैट बॉल मैंने कहाँ पे उसको कैपिटलाइज करना है, तो फिर आप उनके अगेंस्ट रन्स कर सकते हैं, उनको विकटें नहीं देंगे तो मुल्तान सुल्तान कहीं ना कहीं प्रेशर में पिच आएगी। रिपोर्ट का मजाक है आज। सर बिल्कुल हैगा, सिर्फ ये है कि वो पाइप में फंसी हुई है, आ रही है, तो पीछे से जोर लगा रहे हैं पिच उसको। रिपोर्ट यूजली ब्रॉडकास्ट करता हूँ, वो तो 2 घंटे पहले कर देते हैं पिच रिपोर्ट आके। बस वो जहाँ पे आप करते हैं फॉक्स के लिए काम, आप करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इधर उधर, ये PSL चल रही है, रिलैक्स करें ज़्यादा। Okay. और वैसे भी आप प्रेसिडेंट हैं But they're the कराची same में। people who actually work everywhere. The director, producer मुझे हमारे। बताएं, शायद आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि कराची के वो प्लेयर्स जो हॉस्पिटलाइज थे, उनको इश्यूज आए, वो रिकवर कर चुके हैं, और दे आर फुली अवेलेबल? I have no idea. नो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यही चीज़ उनकी तरफ, मुल्तान की तरफ भी थी ना, कि जॉर्डन को हमें पता लगा कि इंजर्ड है, विली के मुतालिक पता लगा कि ही इज़ नॉट फिट। तो ये भी दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि कौन से प्लेयर पहले तो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो। मुल्तान के प्लेयर्स आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली फिट हो Recover कर जाएंगे। गए। दे आई थिंक प्रोबब्ली काफ़ी हद तक कि उनके जॉर्डन अगर फिट है, वो official खेल news रहे हैं, कोई तो नहीं जॉर्डन कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू। Before every game in the morning, there should be official statement from the team. होनी चाहिए ताकि क्लैरिटी आए। These दूसरा मुल्तान के लिए ये भी होगा कि फैसल अकरम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की पिछले मैच में। अब वो लास्ट मैच में तो आए हैं क्योंकि इन्होंने चेंजेस किए हैं इंजरीज की वजह से। अब यहाँ की पिच भी डिमांड करती है कि यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा स्पिनर जो होना हमने चाहिए। 2 पिचेस देखी हैं बिल्कुल। कराची की, उस पे तो स्पिन काम आई है। बिल्कुल, तो ये बड़ा एक वाइटल होगा मिडिल के ओवर्स जो अभी हम बात कर रहे थे। अगर फैसल अकरम और उसामा मीर दोनों मिडिल में बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक दैट विल बी द गेम सामने। अब इनके पास अगर यही टीम खिलाते हैं जो लाहौर के खिलाफ खिलाई थी, दे हैव ओनली 2 फास्ट बॉलर्स, वो दहानी और मोहम्मद अली। मुझे लगता है कि अगर जॉर्डन फिट होते हैं Yeah. तो अगर उनको खिलाया जाए, क्योंकि अभी तक ये 3 ओवरसीज से खेल ऐसी रहे हैं, Yes. तो अगर वो आते हैं लास्ट मैच तो वो 2 ओवरसीज से खेले। हाँ, लास्ट में तो तो 2 अगर ऐसा है तो इनके पास ऑप्शंस तो हैं। बेसिकली 2 आफ्ताब को emerging खिलाया players था, भी उसकी थे। जगह उधर जॉर्डन उनके आ पास सकते हैं, बैठे विली आ सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स भी आ गए मुल्तान के लिए भी आ बैटिंग के अंदर, तो मे बी दे कैन लुक एट समबडी टू चेंज इन द बैटिंग। हालांकि बैटिंग हैज बीन डूइंग वेल फॉर देम They're मुल्तान। winning, they're fine, they can change things, they can try things, they can Yeah. try different combinations. लेकिन बॉलिंग तो मुझे लगता है I think Wasim, today if they win today then they've qualified for the qualified, playoffs. yeah. I think अगली गेम से they would go, let's do all the experiments that are Experiments not one off, एक दो, not I the think whole they team. still Right. want to be in the top 2. Yeah, that's very important. क्वालिफाई तो वो कर जाएंगे once they confirmed in top 2 then लेकिन अगर मुल्तान को देखा जाए तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट है नहीं। अब देखें पिछले मैच में 2 मेरे ख्याल में आफ्ताब इब्राहिम, फैसल अकरम 2 इमर्जिंग प्लेयर्स खेले और वो 2 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेले हैं। अगेन कन्विंसिंग विक्ट्री थी और लग नहीं रहा था कि भाई को कोई फर्क पड़ा मिसिंग है, कोई चेंज आई है। आइए जरा पिच के ऊपर नजर डाल लेते हैं। What a brilliant pitch report, जिसमें पिच के बारे में कुछ नहीं दसे खिच-मिच। स्टैट्स दसे हैं। कि खिच पिच पर रिपोर्ट थी, खिच पिच रिपोर्ट थी। जी वसीम, खिच पिच रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या Pitch looks the same as the last previous 2 games. It's a tired square, looks tired. Maybe it's a fresh pitch, it says, but looked tired. There's no ये grass. अब समझ आ जाएगी जी, जिस पे हम कुछ बात कर ये देखे ना, ये हूवर जैसे कहते हैं हम, ये अजहर अली को कहते हैं, अजहर कह रहे हैं मेरी तरह लग रही है पिच, टायर्ड। tired, shattered, and it's probably will grip. बल्ले पे गेंद शायद सेकंड इनिंग में आए, अगर थोड़ी ड्यू पड़ती है तो बेहतर हो जाएगी। यहाँ से तो यही लग रहा है बैठे हुए कोई 4 मील दूर ग्राउंड आगा साहब बच गए ना बेटा। आगा साहब बच गए। थोड़ा सा घास ज्यादा है वैसे पिछले, लेकिन आगे जब What गुड लेफ्ट घास? आते हैं तो फिर ड्राई हो जाता है बिल्कुल। वो कहाँ पीछे नजर आ रहे हैं पी विकेट वेरी ड्राई। टीवी पे तो ऐसे लग रहा है क्रैक ही क्रैक नजर आ रहे हैं। तो दोनों हर तरफ से क्रैक ही क्रैक नजर आ रहे हैं। What do you reckon? गलती हो गई थी शुरू में। मेरे को किसी ने पूछा, मैं क्या नहीं है थे स्पिन नहीं होता कराची। Yeah, I know. I remember. झूठिया कर रहे हैं। लेकिन मिसबा की बात गलत साबित करनी है, चाहे हमें जो किसी मर्जी हो की जाए। लाश पे से गुजरना पड़े।
Absolutely. All right. टेस्ट मैच में जब हम कहते थे ना कि स्पिन पिच बनानी है तो बड़ा मासूम मुंह करके आए कहते थे सर ਇਹ ਤੇ स्पिन नहीं बन सकती ਤੇ ਹੁਣ पता नहीं ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ All right, folks, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं फखरान आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर कंटिन्यूइंग कवरेज ऑफ द HBL PSL 9 and we're very close to the game ahead which is Karachi Kings colliding with Multan Sultans और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद I've got Azhar Ali, मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक एंड द ग्रेट वसीम अकरम। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आज के पोटेंशियल प्लेइंग 11s क्या हो सकते हैं। अब इस पिच को मद्देनजर रखते हुए मिसबाह, व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ गुड पिक फॉर बोथ साइड्स? That's a very, very vague question. बड़ा ही that's छोटा all ही सवाल Really is 22 प्लेयर उधर हैं, 22 प्लेयर इधर हैं। हमें ये नहीं पता कराची किंग की फिटनेस कितने लड़के कौन फिट हैं, कौन अवेलेबल है, कौन नहीं है। तो उसने क्या दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बना चल बना दे तू 10 प्लीज। मैं कहना पर्चियां पानियां चाहिए ने दोनों पासे ਤੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਨਿਕਲ ਆਣ ਦੋ ਖਿਲਾ दो। That's not a bad idea. That's one way to look at it. That's one way of looking at it. सबसे आसान तरीका तो यही है। जाहिद खेलेगा कराची से, अनवर अली प्लेड वेल, मजहर रब्बानी शुड प्ले एज वेल। अब बाकी डिपेंड करता है पोलार्ड की जगह कौन आता है। अगर वो फिट है आपका डुप्लोए वो आता है बिकॉज फिर आपकी ओपनर तो आपके पास हैं पहले 3 जेम्स विंस कप्तान और वो टिम साइफर्ट और फिर अब ये देखना है कि 5 पे 4 पे अगर शुएब मलिक आता है तो 5 पे कौन आएगा। बहरहाल मुझे लगता है कि कराची के लिए डुप्लॉय अगर खेलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मलिक 5 पे आ जाएंगे और वो ऊपर के 3 या 4 पे जिस नंबर पे 4 पे वो खेल सकते हैं। बैलेंस तो यही है, इस टीम का बेहतर हो सकता है। इसलिए सोचने की बात ये है कि मीर हमज़ा को आना चाहिए आई थिंक सो नए बॉल के साथ और फिर डेथ बॉलिंग में भी हसन अली की जगह आएगा, किसकी जगह आएगा। एक ही 2 ही तो फास्ट बॉलर है, ब्लेसिंग है और वसीम भाई मेरे ख्याल में माइनस नवाज इज़ द टीम फॉर मी फॉर कराची किंग। ओके ठीक है, और मीर हमजा आ जाए नमाज की जगह और आपके नंबर 5 और 6 के ऊपर ऑलरेडी अनवर और इरफान न्याजी ये ऑप्शन मौजूद है। वो 6-7 पे भी खेल सकते हैं। नहीं वो 6-7 पे खेल सकते हैं, फिर 8 पे आपका 8 पे कौन आएगा। फिर 7 पे भी नहीं है ना, आप 7 पे भी एक गैप आपका बन जाता है जो मुश्किल है। मुझे लगता है कि एक बैट्समैन देखें ना, पोलार्ड की जगह आपके पास एक बैटिंग ऑप्शन है ना। हाँ अगर आप पोलार्ड नहीं खेल रहा तो उसकी जगह तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि नमाज के बगैर टीम बननी चाहिए। ओके नवाज को काटा मार दिया उन्होंने। नहीं कंसिडरिंग हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 मैचेस मेरे ख्याल में जो कंडीशंस यहाँ पे नवाज का रोल बनता है Okay. और बिकॉज फास्ट बॉलर को यहाँ पे रन्स हो रहे हैं तो या तो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस हो, रिवर्स स्विंग का चांस हो जिसमें उसमें फ़ायदा है। नए बॉल पे वैसे ही बैट पे ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आई थिंक हसन अली रिवर्स स्विंग पे आपको काम आ सकते हैं। मीर हमज़ा का ये ऑब्वियसली अब आप 2 फास्ट बॉलर जा रहे हैं तो मुजर रब्बानी का एक एडिशन हो गया ऑलरेडी। तो आई थिंक बैकअप पे रखें मीर हमज़ा को। लेकिन ये कि इस टाइम पे जो टीम पिछले मैच में खेली थी उसके अलावा सिर्फ एक आई थिंक अगर डिप्लॉय फिट हो जाते हैं और पोलार्ड आ जाते हैं तो सेम टीम बाकी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। आपने देखा वे क्वेश्चन का कितना सारा जवाब कुछ देना तो जबरदस्ती तो टच करो ना निकाल दिया टॉस जो उनकी गाली भी ना करिए। I love it. I should ask you guys more vague questions. You talk more when I ask you vague questions. मुल्तान सुल्तान को अगर देखें उनकी चेंजेस हो सकते हैं ज़्यादा हो। इब्राहिम आफ्ताब इब्राहिम जो उनके अनदर इमर्जिंग खेल रहे थे 2 तो ऑलरेडी खेले तो एक तो बैठ सकता है तो डेविड विली वापस आ सकते हैं। क्रिस जॉर्डन भी आई थिंक फिट हो चुके हैं तो शाहनवाज दानी की जगह शायद वो आ जाएँ। जो मैच पड़ेगा वो सही ये पड़ेगा। उस्मान खान ने पिछले मैच में 94-96 किए हैं। मिलान अगर फिट हो जाते हैं क्या उनको रिप्लेस करेंगे या उन्हीं के साथ जाएंगे तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अदर देन दैट उनके पास जो चल रही टीम उनकी बेहतरीन चल रही है। वो उनके पास तो सारे प्लेयर्स जिन्होंने खिला लिए वो सब ने परफॉर्म किया। लेकिन मोर ताहिर की जगह आ सकते हैं। डेविड मिलान अगर मिडिल में लेफ्ट हैंडर उनको चाहिए तो ओवरसीज ज़्यादा हो जाएंगे ना। Okay. My more direct question to you. You've seen the pitch. You thought it's the same kind of pitch that is played. Yeah. Win the toss, do what?
इट डिपेंड्स आपकी स्ट्रेंथ की, आप क्या करना चाहते हो। इस पिच पे 175 कर लोगे तो फंसा लोगे दूसरी टीम को, बट उसके लिए आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़नी है, बट पहले 175 भी तो करना है। Right. बट आई सपोज कराची किंग्स की जो भी उनका जो प्लान होता है ना आपका, कि डिफेंड करना है या हमने चेस करना है, इट ऑल डिपेंड्स। All right. With that, we're going to take you live to National Stadium where both the captains are walking out for the toss. जनाब, तो खबर आ गई है, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और कुछ चेंजेस हैं। ये प्लेइंग 11 आ रही है आपके सामने। सबसे पहले मिसबा, ये मुल्तान की प्लेइंग 11। जी, रिजवान, उस्मान खान, रीज़ा हेनरिक्स, तैयब ताहिर, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, क्रिस जॉर्डन आए हैं टीम में और डेविड बिली वापस आए हैं, तो ये 2 चेंजेस हैं। उसामा मीर, फैसल अकरम एंड मोहम्मद अली। सो मुल्तान की टीम लुकिंग मोर। वसीम, कराची किंग्स। Yeah, Tim with the wins and of course Shoaib Malik comes in, Duploy वापस आ गया है, फिट हो गया है, वो अवेलेबल नहीं है उन्होंने बताया है। Then Irfan is there, Nawaz is there, Mir Hamza comes back as well because he was injured instead of Anwar Ali. I thought Anwar Ali did really well in the previous game as a power hitter, not as a bowler. So I think they must have wanted a proper bowler, I suppose, who can bowl in the end, and Mir Hamza is very experienced. All right, with that, it's time for the expert predictions. All right, Azhar. कराची। Karachi Kings from Azhar Ali. Hafiz. Teamwork and process, Multan. Multan Sultans for teamwork and process. भाईजान, आज कराची किंग्स यार, अच्छा पक्की अभी एक टीम को फॉलो क्यों करना है तो पूछते पूरा करना है ना यार। मेरा काम है पूछना भाई। वो कहते हैं ना, बुरे नु कार तक छड़ गया। Exactly. आप सदर हैं कराची किंग्स से, मुझे पता है, Yeah, End तक I ही have to pick Karachi King whatever they do. पक्की बात है ना। I mean, आज तो बात दसांगा। And मिसबा, कराची नहीं, मुल्तान। Karachi नहीं, Multan. Okay, so 2 for Kings and 2 for Multan, and those are your expert predictions. Hafiz, क्या target Multan Sultan set करेंगे to seal this game for them? मुझे लगता है जितनी उनकी बैटिंग फॉर्म में है, दे आर टोटल कंट्रोल ऑफ द गेम, 180. 180? Yeah. And will Karachi Kings be able to chase it, Misbah? 180 on any pitch is difficult to chase. this पे तो मुश्किल होगा। रिसेंटली जो स्कोर्स 170 प्लस या 175 के स्कोर्स हैं वो डिफेंड हुए हैं यहाँ पे, उससे नीचे समहाउ जैसी भी मुश्किल भी पिच होती है चेज हो जाता है। All right. Okay, folks, with that, I'm going to say thank you, Azhar. Thank you, Fiz. Thank you, Misbah. Thank you, Waseem. We're going to take you to National Stadium where the action will start. 7 p.m. sharp, the game will commence, and we will see you on the other side of the game. Stay with us. Stay watching A Sports and the HBL PSL Season 9.